Morning student, stay home, stay safe. Now this date I am discussing the new chapter training and doping in sports. Learning objectives, meaning and concept of sport training, principle of sports training, warming up and limbering down, skill, technique and style, concept and classification of doping, prohibited substance and their side effects, dealing with alcohol and substance abuses. First, concept of sport training. Sports training is indispensable in the field of games and sports. In fact, without appropriate training in the field of sports, it is impossible to reach at the top position. Owing to this reason, sport training is widely used in this field. Sport training directly or indirectly aims to improving the personality of a sport person, which ultimately help in enhancing his her sports performance. Meaning and concept of sport training. The word training is not new. People have been using this word since archaic period. Training means the process of preparation for some task. But in the field of sports, our main task is fitness and conditioning for sports and games. It is only due to this reason that this term is mostly used in sports and games, so it is called sports training. The concept of training and sportsman participation seem to coincide but are not identical. Preparation is broader both in volume and contact. In fact, preparation is a complex procedure and directly influence the sports person development and ensure the necessary degree of readiness of success. This complex system includes sports trainings, sports competitions as a form of preparation, special nutrition, etc. Sports training is the main concept and the basics form of preparing the sport person. In other words, it is a systematically planned preparation with the help of various exercise. The content of sports training includes all the basic types of preparation of the sport person. Systematic training improves the athlete's fitness level. It is the basis of his or her preparedness for achievement in the field of sports. The physical exercise which are used in training have a profound effect on the physical development and athletes. It means कि जो ट्रेनिंग वर्ड्स है ये कोई नया शब्द नहीं है. ट्रेनिंग मीन्स प्रशिक्षण. इस वर्ड्स को लोग बोलते हैं कि हमारे एपिक्स टाइम से यूज किया जाता है, मीन्स पौराणिक समय से ही यूज किया जाता है. ट्रेनिंग की मीन्स होता है, प्रशिक्षण का अर्थ होता है किसी कार्य की तैयारी की प्रक्रिया से है. मीन्स कोई आप कार्य करने वाले हों उसकी प्रिपरेशन से है कि आप कैसे तैयारी करते हैं. या हमारा मुख्य कार्य मेन वर्क स्पोर्ट्स के लिए वेलनेस मीन्स सुयोग्यता, फिटनेस मीन्स पुष्टि और अडॉप्शन मीन्स अनुकूलन प्रदान करना है. इसी कारण यह शब्द खेलकूद के क्षेत्र में अधिक प्रयुक्त किया जाता है. मीन ऊपर एबव द टॉपिक्स मीन्स वेलनेस, फिटनेस एंड एडॉप्शन, प्रिपरेशन, इन सब का यूज होने की वजह से स्पोर्ट्स में इसका जो ट्रेनिंग वर्ड्स है इसको ज़्यादा यूज किया जाता है. इसलिए इसको खेल प्रशिक्षण में से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहा जाता है. ट्रेनिंग की धारणा और खिलाड़ी की तैयारी मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ एथलीट या स्पोर्ट्समैन आपस में मेल खाती प्रतीत होती है, फिर भी एक दूसरे की पूरक नहीं है. प्रिपरेशन मीन्स तैयारी का क्षेत्र अधिक व्यापक एवं विस्तृत है. वास्तव में तैयारी एक कठिन प्रक्रिया है. यह खिलाड़ी के विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है तथा आवश्यक सीमा तक सफलता के लिए तत्परता को बढ़ाती है. इस कठिन प्रक्रिया में खेल प्रशिक्षण मीन्स स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स कंपटीशन
प्रिपरेशन के रूप में, मीन्स तैयारी के रूप में, और विशेष आहार आज शामिल किए जाते हैं। इसका मुख्य अंग तो खेल प्रशिक्षण और खिलाड़ी की मूल तैयारी ही होती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, अनेक व्यायामों सहित यह एक सुव्यवस्थित एवं योजनापूर्ण तैयारी होती है। खेल प्रशिक्षण मीन्स स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंगों में खिलाड़ी की सभी तरह की मौलिक तैयारियां शामिल होती हैं। मौलिक मीन्स फंडामेंटल प्रिपरेशन इंक्लूड होता है। सुव्यवस्थित प्रशिक्षण खिलाड़ी की पुष्ट के स्तर को बढ़ाता है। पुष्ट मीन्स फिटनेस के लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है, डेवलप करता है। यह स्पोर्ट्स अचीवमेंट की तैयारी का आधार होता है। शारीरिक व्यायाम मीन्स फिजिकल एक्सरसाइज, जिसका प्रशिक्षण में मीन्स ट्रेनिंग में प्रयोग किया जाता है, का खिलाड़ी के शारीरिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसका अर्थ है कि शारीरिक व्यायाम फिजिकल एक्सरसाइज खिलाड़ी का शारीरिक विकास करता है, लेकिन प्रतिदिन सुव्यवस्थित शारीरिक व्यायाम भी प्रदर्शन के स्तर को और अधिक आगे नहीं बढ़ा पाता। स्पोर्ट्स के फील्ड में अच्छे प्रदर्शन के लिए और भी अनेक कारक अति आवश्यक हैं, जैसे विशेष पुनर्वासात्मक उपचार मीन्स अडॉप्शन, अतिरिक्त प्रशिक्षण का प्रयोग, अतिरिक्त प्रतियोगिताएं मीन्स एक्स्ट्रा कॉम्पिटिशन्स, स्पेशल रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट, यूज ऑफ सप्लीमेंट्री, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा competition, means of assessment of performance capacity, special nutrition, psychological factor, etc. So in other order to achieve the best result, all the above maintained factors are to be used along with physical exercise. Sports training must be understood as a specialized process of all-round physical strengthening aimed at the preparation of a sports person for performance in games and sports. Sports training is a systematic and regular process which is generally used for a longer duration. Sports training should be based on scientific facts in we want to get good result in competition. If that is not possible, it should be based on the result of सक्सेसफुल प्रैक्टिस। जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, खेल प्रशिक्षण, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्यतया लंबी अवधि के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जनरली लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज़ की जाती है। यदि हम कंपटीशन में अच्छे मीन्स गुड रिजल्ट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो खेल प्रशिक्षण साइंटिफिक कॉन्सेप्ट मीन्स वैज्ञानिक आधार या प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो खेल प्रशिक्षण सफल अभ्यास के परिणाम स्वरूप मिले अच्छे परिणामों पर आधारित होना चाहिए। तो ये होता है कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।